guys, welcome back, and today we'll be starting a new video, and this will be about Ascent of Sap. And if you haven't watched the last two videos in fact, about the plant movement, water movement, water absorption, everything is that you require to understand is present in those videos. Just go and watch it and then come back to this one. So Ascent of Sap: water and the minerals from the soil enter the plant through the epidermis of the roots. ये हमने पहले पढ़ लिया था कि वाटर एंड मिनरल्स जितने भी हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं through the roots, and root hairs play an important role in that, in the radical motion of the root cortex, radical movement to the water key, and by symplast and apoplast pathways, which are explained in detail in the last videos along with the diagrams. So guys, if you need to watch it, please go and then come back to this one, because you need to know the basic things which are required to understand the ascent of sap. Right, from the xylem sap, the water and dissolved minerals in the xylem moves upwards. It is vitally important for a plant to transport water and minerals from the soil to the uppermost leaves. अब हमने ये बोला है कि जितने भी जैसे एनिमल्स में होता है, एनिमल्स में नीड ब्लड, एंड ब्लड इज सर्कुलेटेड विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम टू द ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. बट इन प्लांट्स ऐसा कोई सिस्टम तो होता नहीं है, लेकिन वाटर का एसेंशियल रिक्वायरमेंट होता है सारे पार्ट्स में. तो अब पानी वहाँ तक जाता कैसे है? दैट इज़ द मेन रीज़न वी आर स्टडिंग द एसेंट ऑफ सैप, एंड आगे आगे पता चलेगा धीरे धीरे इन डिटेल. सो जस्ट कीप स्टडिंग. And the water movement, upward movement of minerals and the plants against the gravitational force from the roots to the aerial parts of the plant, the xylem, is called as ascent of sap. जितनी भी जैसे हमारा प्लांट्स में रूट्स में प्रेजेंट होता है मिनरल्स एंड वाटर, तो उसको हमें ऊपर तक लेके जाना है. तो उसकी मूवमेंट, दैट इज़ द मूवमेंट ऑफ मिनरल्स एंड वाटर अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम द रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज ascent of sap. Xylem is a very complex tissue, and it consists of living and non-living cells. Mostly it is dead, and the conducting cells in the xylem are typically non-living. Conducting cells कौन से होते हैं? अब जो ऊपर तक लेके जा रहे होते हैं उसको हम conducting cells बोलते हैं, क्योंकि वो वाटर का जो मूवमेंट होता है वो कंडक्ट करवाते हैं. Therefore they are referred as conducting cells in the xylem, and they are typically non-living. They are typically dead, and they include two types of trachary elements, tracheids and vessel elements. ठीक है, both of these cells have thick walls, they have lignified secondary cell walls, and they are dead at maturity. दोनों में ये चीज़ कॉमन है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे जाइलम के अंदर. बेसल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द एंजियोस्पर्म्स and small group of gymnosperms. Angiosperms and gymnosperms, flowering and non-flowering. All right, now xylem tissue also contains xylem parenchyma cells, that is they help in the storage function, and the xylem fibers जो present होते हैं they help in the mechanical function. ठीक है, मतलब xylem स्टोर भी करता है और xylem आगे ट्रांसपोर्ट भी करता है. उसको ऊपर ट्रांसपोर्ट करना है, उसको हम कंडक्टिंग सेल्स बोलते हैं. जो कंडक्टिंग सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं. ठीक है, क्योंकि जाइलम जो होता है वो मेन पार्ट है जो हमारा प्रोसेस ही करवाता है. तो मेन पार्ट में जितने भी सेल्स होते हैं, सम ऑफ देम आर डेड, सम ऑफ देम आर अलाइव, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं वो हमेशा ही डेड होते हैं. ठीक है, और ट्रैकीड्स की बात करते हैं तो ट्रैकीड्स आर एलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड सेल्स, एंड the walls of these cells are heavily lignified with openings in the cell wall called pits. पिट्स होता है एक पिट, मतलब ओपनिंग, जैसे डिप्रेशन की तरह एक ओपनिंग सी होती है, उसको हमने पिट बोला है. और वाटर फ्लोज बिटवीन द ट्रैकीज बाय मीन्स ऑफ न्यूमरस पिट्स. जितने भी वाटर होता है वो ट्रैकीज में कैसे जाता है? क्योंकि बहुत सारे पिट्स प्रेजेंट होते हैं लेटरल वॉल्स में, और जो पिट्स होते हैं दे आर माइक्रोस्कोपिक रीजन्स. ठीक है, वेयर द सेकेंडरी वॉल इज़ एब्सेंट एंड द प्राइमरी वॉल इज़ थिन. प्राइमरी वॉल वहाँ पे थिन होती है, लेकिन जो सेकेंडरी वॉल है दैट इज़ एब्सेंट. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी क्लियरली. ठीक है, वाटर जो होता है, हमने बोला कि ट्रैकीड्स और वेसल एलिमेंट्स हमारे ट्रैकरी एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे जाइलम में प्रेजेंट होते हैं. और जाइलम में बहुत सारे ऐसे टिश्यूज़ भी होते हैं जो कंडक्ट करवाते हैं, और जैसे कि
xylem fiber, xylem parenchyma, but इनका different फंक्शन होता है. एंड नाउ वी टॉकिंग अबाउट ट्रैकीज. ट्रैकीज में क्या होता है, पिट्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू हमारा ओपनिंग्स, जिसके थ्रू थिक लिग्निफाइड ओपनिंग्स होती हैं इन द सेल वॉल कॉल्ड पिट्स. अब वाटर क्या करता है, इनके बीच में से जाता है. तो पिट्स का काम क्या है, दे आर माइक्रोस्कोपिक रीजन्स. ये जो ओपनिंग्स होती हैं माइक्रोस्कोपिक रीजन्स होती हैं जिसमें सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो होती ही नहीं है. ठीक है, जो लिग्निफाइड होती है वो होती ही नहीं है. एंड प्राइमरी वॉल जो होती है वो होती है बट इट इज़ वेरी वेरी थिन. ठीक है, जो पिट्स होते हैं ऑफ वन ट्रैकीड आर टिपिकली लोकेटेड ऑपोजिट टू द पिट्स ऑफ द एडजॉइनिंग ट्रैकीड. तो इसकी वजह से क्या होता है, अब दोनों जुड़ रहे हैं. ठीक है, एक पिट ये रहा. ठीक है, सपोज एक पिट ये रहा और दूसरे का जो उसकी जो दूसरे वाली की जो ओपनिंग है वो इसी की साइड है, इसकी इस साइड है, इसकी इस साइड है. तो दोनों मिला के क्या बनाएंगे, पिट पेयर्स. ठीक है, क्योंकि दोनों के जो मुंह है वो एक साथ खुल रहे हैं और दोनों का जो पिट है दे आर कमिंग टुगेदर, रेफर्ड एज पिट पेयर्स. The porous layer between the pit pairs consists of two primary walls and a lamella, and it is called as a pit membrane. ठीक है, vessel elements are shorter and wider than trachees and have perforated end walls that forms a perforation plate at each end of the cell. Like trachees, vessel elements have pits on their lateral walls. The perforated end walls allow vessel members to be stacked end to end to form a conducting tissue called as a vessel. Because of their opening because of the open end walls. अब जितने भी end walls हैं वो सारी open हैं, तो vessel क्या करते हैं, they provide a very low resistant pathway for the movement of water. वहाँ पे सारा खुला होता है एरिया, तो इसकी वजह से पानी जो होता है उसका movement is very easily done. So now next is in case of rooted plants, transport of water and minerals to xylem is essentially unidirectional. मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम. ठीक है, नाउ द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप. एसेंट ऑफ सैप क्या होता है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जो पानी का मूवमेंट होता है टू द अपवर्ड पोर्शन ऑफ द प्लांट. तो इसमें क्या होता है, जैसे सारे एनिमल्स में, मैंने पहले भी ये बात बोली थी, सारे एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन प्लांट्स के पास कुछ नहीं होता जिसके थ्रू वाटर जो होता है वो सारे एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुँचे. एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट मीन्स द टॉप रीजन ऑफ द प्लांट्स. तो उसके लिए वहाँ पे क्या होता है, कैसे पानी पहुँचता है, पुश करते हैं पानी को, पुल किया जाता है. व्हाट इज़ द बेसिक प्रोसेस. सो यूजुअली ड्यू टू द रूट प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज जनरेटेड. अब रूट्स में प्रेशर होता है, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होता है इन द xylem ऑफ द रूट्स, बट दिस रूट प्रेशर इज टिपिकली लेस देन 0.1 MPa एंड दिस इट डिसअपीयर्स व्हेन द ट्रांसपिरेशन रेट इज़ हाई. तो देयरफॉर तब क्या करें, वाटर कैसे मूव ऊपर करेगा. तो वाटर जो टॉप पे होता है ऑलरेडी ट्री के या प्लांट के, वो डेवलप करता है लार्ज टेंशन, वो नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप करता है, जिसकी वजह से जो नीचे पानी प्रेजेंट होता है वो पुल कर लेता है उसको थ्रू द xylem. और xylem में क्या होता है, कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं जिसके थ्रू वो पानी ऊपर तक जाता है. ट्रांसपिरेशन जनरेट्स नेगेटिव प्रेशर in the leaves xylem of the leaves, and which in turn pulls the water upwards. अब ट्रांसपिरेशन, जब हमने बोला कि जो ट्रांसपिरेशन होती है जब वो ज़्यादा होती है तो उस केस में ये डिसअपियर हो जाता है. ठीक है, लेकिन अब इसमें बोला है कि जो नेगेटिव प्रेशर डेवलप करता है वो कहाँ डेवलप करता है, लीव्स में. लीव्स का जो xylem वाला पार्ट होता है उसके अंदर, जिसकी वजह से पानी जो होता है अपवर्ड मूव करता है. लेकिन एक मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, that is the cohesion tension theory. Cohesion tension theory, it is also referred as the transpiration pull theory, proposed by Dixon and Joly. अब वाटर की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट करती हैं. दैट इज़ कोहेजन, म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. एडहेशन, अट्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स टू द हाइड्रोफिलिक वॉल्स ऑफ द ट्रैकरी एलिमेंट्स. एडहेशन मतलब वो अपने आप को चिपका पाते हैं टू द वॉल्स ऑफ द ट्रैकरी एलिमेंट्स. ठीक है, मतलब वेसल्स एंड vessel elements and to the trachees. ठीक है, और थर्ड इज द surface tension. Water molecules are attracted to each other in the liquid phase more than the water in the gas phase. Due to these properties, water has a high tensile strength, that is the ability to resist a pulling force, and a high capillarity, that is the ability to rise in a thin tube. In plants, capillarity is aided by the small diameter of the trackery elements. That is, हम 2 ट्रैकरी एलिमेंट्स होते हैं, इनका नाम हमेशा याद रखना.
As the transpiration pulls the sap from the soil to the leaves, water in the xylem is in tension, and due to this negative pressure in the xylem, it causes cavitation in the xylem. अब cavitation क्या होता है? Cavitation also referred to as embolism, the appearance of a gas bubble within the liquid phase, and this process can block the water transport and lead to severe water defects in the leaves. ठीक है, अभी जो severe water defects होते हैं, अब इसमें क्या है, ये जो इम्पैक्ट होता है ना xylem cavitation का ऑन द प्लांट, इट इज़ मिनिमाइज बाय वेरियस मीन्स. बहुत सारे मीन्स होते हैं जिसके थ्रू मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन जो एक मिनिमाइजेशन मैकेनिज्म होता है मिनिमाइज का करने का, वो होता है द एंड वॉल्स जो होती हैं, द वेसल्स एंड द पोर्स प्रिवेंट द बबल फ्रॉम स्प्रेडिंग फ्रॉम ट्यूब टू ट्यूब. ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द एसेंट ऑफ सैप. एंड एसेंट ऑफ सैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो है कोहेजन टेंशन थ्योरी. वाटर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके थ्रू वो ईजिली ऊपर जा पाता है. व्हाट इज़ कोहेजन, व्हाट इज़ एडहेजन, व्हाट इज़ द सरफेस टेंशन प्रोसेस, और ईजिली ट्रांसपिरेशन के टाइम पे क्या होता है. इफ़ ट्रांसपिरेशन इज़ मोर तब क्या होता है, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा है तब क्या होता है. ठीक है, रूट प्रेशर कैसे डेवलप होता है, ऊपर तक कैसे जाता है. दैट इज़ द मेजर रीज़न यू आर स्टडिंग दिस. ऑलराइट, इसको डिटेल में पढ़ लेना. एंड इफ़ एनी डाउट, comment down. I'll just give you a brief explanation about anything regarding your doubts. And like करके जाना, subscribe करना मत भूलना please, because I'm working very hard for you guys and you need to subscribe. Alright, and now we'll be back in the next video. I'll be explaining you the process of transpiration. Transpiration क्या होता है, कैसे होता है, transpiratory losses, उसका basic mechanism, स्टोमेटा कब खुलता है, स्टोमेटा कब बंद होता है, दैट्स ओके, उसमें ये बताएंगे. एंड इसके लिए ये वाला पोर्शन इज़ कम्प्लीटेड एंड यू नीड टू स्टडी. पुराना वाला पढ़ना है तो यू कैन लुक अप टू माई वीडियोज़. So do like, share and subscribe guys. See you in the next video. Bye.